We were talking about the constitutional crisis between 1954 and 1955. अब तक हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था that what happened when Ghulam Muhammad was out of the country. Ghulam Muhammad when he was out of the country, what happened? Muhammad Ali Bogra went to Constituent Assembly and he requested that the power of Governor General should be reduced because according to him, Governor General was not using his power in his correct way. That is the reason what he did basically requested the Constituent Assembly members that they should make sure that all of his ministers should be the part of Constituent Assembly. और जो भी कैबिनेट एडवाइस करे वो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को करे और विद इन 15 मिनट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने परोडा एक्ट को खत्म किया जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स गवर्नर जनरल को दे रहा था और ये डिसाइड किया गया कि गवर्नर जनरल की पावर को रिड्यूस होगा यानी गवर्नर जनरल की पावर रिड्यूस होगी गवर्नर जनरल की पावर को कम किया जाएगा लेकिन जब गुलाम मोहम्मद वापस आए तो उन्होंने क्या किया यस आयशा प्लीज रीड द सेकंड पैराग्राफ However, Ghulam Muhammad was not a man who took opposition lightly. He waited until Bogra was out of the country during the following week and then struck back. He declared a state of emergency and then dissolved the assembly. He made a statement saying, "The Governor General, having considered the political crisis with which the country is faced, has decided to declare a state of emergency." The Constituent Assembly. Sorry, wait a second. Yes, please. The Constituent Assembly, as at present constituted, has lost the confidence of the people and can no longer function until such time as elections are held. The administration of the country will be carried out by the reconstituted cabinet. Ghulam Muhammad then chose a new cabinet, having resisted his authority. He reappointed Bogra as prime minister, but selected 5 members of the cabinet who were not members of the assembly. These included the commander-in-chief of the army, General Ayub Khan. Yes, third and the last point. Maulvi Tamizuddin, the Speaker of the dissolved assembly, contested the dissolution in the Sindh High Court, saying that the dissolution had been illegal and that non-assembly members should not be appointed in the cabinet. In February 1955, the court ruled in favor of Maulvi Tamizuddin. Ghulam Muhammad appealed to the federal court against this judgment. On 10th May 1955, this higher court ruled that Ghulam Muhammad had the authority to dismiss the assembly if he was satisfied that the situation demanded it. On 21st June 1955, elections were held for a new constituent assembly. It met for the first time on 7th July 1955. In August, Ghulam Muhammad fell ill and had to resign. He was replaced by General Iskandar Mirza. Now basically बेटे अब यहाँ से सवाल क्या आता है बेटे यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन ये आता है कि आया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस 1954 से 1955 तक क्या थे तो आप पहले पैराग्राफ में लिखोगे कि हुआ क्या जब वैन गुलाम मोहम्मद वाज आउट ऑफ द कंट्री तो मोहम्मद अली बोगरा ने कैसे उनकी पावर रिड्यूस करने की कोशिश की फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे कि जब गुलाम मोहम्मद वापस आए तो उन्होंने क्या किया फिर तीसरे पैराग्राफ में मौलवी तमीजुद्दीन वाली बात लिखोगे इज इट क्लियर अब आप लोग मुझे बताओ इज देयर एनी प्रॉब्लम विद गुलाम मोहम्मद एंड मोहम्मद अली बोगरा हैव यू अंडरस्टूड इट मैम ये मौलवी तमीजुद्दीन का नहीं समझ आया मुझे बेटे मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर के हेड थे यानी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके हेड थे तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद के खिलाफ केस सबमिट करवाया कि भाई हमारी असेंबली को क्यों डिसॉल्व कर दिया है समझ आ रही है बात लेकिन गुलाम मोहम्मद ने केस फेडरल कोर्ट में सबमिट करवा दिया फेडरल कोर्ट ने कहा भाई आप तो गवर्नर जनरल है आपके हाथ में तो सारी पावर है आप जो चाहे आप कर सकते हैं समझ आ रही है बात यस मैम अब बेटे सिकंदर मिर्जा का दौर शुरू होता है सिकंदर मिर्जा वाज बेसिकली द पर्सन बेटे जिन्होंने पावर में आते के साथ ही क्या दी सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को उन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में यूनिटी और नेशनल सॉलिडारिटी को प्रमोट करेंगे उसके लिए उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को जोड़ दिया वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस में कौन कौन थे सिंध पंजाब बलूचिस्तान NWFP ये तमाम एरियाज को जोड़कर उन्होंने एक सिंगल प्रोविंस बनाया और ये उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा की सजेशन भी किया था लेकिन असल रीजन 1 यूनिट स्कीम का ये था बेटे कि उनको डर था कि ईस्ट पाकिस्तान में लोग ज्यादा रहते हैं
और अगर आने वाले दिनों में इलेक्शंस हुए तो ईस्ट पाकिस्तान से लोगों के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, जब भी उनके वेटेज को कम करने के लिए और वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान पे डोमिनेट करने के लिए ही इंट्रोड्यूस 1 यूनिट स्कीम। समझ आ रही है बात? यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में 10 मिलियन लोग ज्यादा थे वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में। तो इस खौफ से, इस डर से कि कहीं ईस्ट ना डोमिनेट कर ले या ईस्ट से कोई बंदा पावर में ना आ जाए, उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसको प्रोविंसेस ने बहुत ज्यादा अपोज किया, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बोला। इसको कहते हैं बेटा 1 यूनिट स्कीम। क्या कहते हैं? 1 यूनिट स्कीम। चलो इसके बारे में रीड करते हैं। अब कौन रीड करेगा इसके बारे में? यस शाजिब, बेटा प्लीज रीड अबाउट 1 यूनिट स्कीम। शाजिब, आर यू देयर? प्लीज What रीड। was 1 unit scheme? Iskandar Mirza introduced it in 1955 to unify all of West Pakistan. He claimed it would bring about greater efficiency and enable more rapid development. West Pakistan politicians and administrators feared that their influence may be challenged if they did not do this, especially as there were 10 million more people in East Pakistan. By unifying West Pakistan and making West Pakistan and East Pakistan official with equal representation in the assembly, the 1 unit scheme prevented East Pakistan from gaining majority in the assembly. This was very unpopular in East Pakistan. इज इट क्लियर बेटे? सबसे ज्यादा लोगों ने शोर मचाया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। फिर बेटे हमें नजर आते 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। सिकंदर मिर्जा ने बेटा वो करके दिखाया जो कोई भी नहीं कर सका, यानी उन्होंने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। असल में बेटे जब उन्होंने पावर संभाली थी, व्हेन ही बिकेम अ गवर्नर जनरल, तो उसी वक्त उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को डिसमिस किया था, चौधरी मोहम्मद अली को अपॉइंट किया था और कहा था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। एंड ही वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बस ये 2 पॉइंट्स आप याद रखो कि उन्होंने उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाया ताकि ये लैंग्वेज का स्यापा ही खत्म हो, राइट? और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया और उन्होंने पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंट से रिप्लेस किया। यही वजह है कि बेटे जब हम पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिकंदर मिर्जा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? ये थी बेटे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। क्या थी? 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिर सिकंदर मिर्जा ने आगे जाके रिजाइन क्यों किया और मार्शल लॉ क्यों आया। ठीक है जी। शिराज, शिराज आप पढ़ो। मैम मैं अयान हूँ। अयान हो? अयान तो नाम शिराज रखा था, सॉरी। नहीं नहीं मैम, ये ना मेरे पापा का अकाउंट है, मैं उससे आया हूँ। चलो कोई जल्दी मसला जल्दी नहीं, में गलती से खुल गया। कोई कोई टेंशन नहीं, तुम पढ़ो बस, तुम आ गए यही बहुत है। चलो पढ़ो। मैम कहाँ से? मेरा ही कहीं पे क्लेम्ड। नहीं है ये विषय। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन मेरे। जी बेटे कोई पूछ रहा अच्छा है? कोई? अच्छा अच्छा अच्छा। जी बेटा प्लीज नहीं रीड। नहीं मैम, मुझे आंसर मिल गया, कंटिन्यू। चलो प्लीज रीड। Describe the 1956 Constitution. Adopted by Second Constituent Assembly, a compromise between Muslim League and United Front, Islamic Republic of Pakistan pronounced Mirza became president. Who would choose the prime minister? President had to be a Muslim and had emergency powers and could dissolve National Assembly. There was a cabinet advisory only and a national and provincial assembly. Constitution scrapped in 1958 and martial law declared. इज इट क्लियर बेटे? अब हम आगे बात करते हैं बेटे। अब हम बात करते थे सिकंदर मिर्जा ने के दौर में हुआ क्या एक्चुअल में, और फिर सिकंदर मैम मिर्जा ने क्यों रिजाइन करना चाहा। जी बेटे। मुझे वो 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाला नहीं समझ आया। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जी अच्छा दोबारा समझा देती हूँ बेटे। सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। बेटे इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि उर्दू एंड बंगाली विल बी द नेशनल लैंग्वेज। फिर उन्होंने ये कहा कि जो हेड है सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट कौन सी थी? गवर्नर जनरल की थी। उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट को रिप्लेस कर दिया किससे? प्रेसिडेंट से।
कि अब जो हेड ऑफ द कंट्री है वो प्रेसिडेंट कहलाएगा, गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है बात? और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। बेटे पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले सिकंदर मिर्जा थे। अब समझ आई? आयशा समझ आई है? दोबारा रिपीट करूं बेटे? जी आ गई समझ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बेटे, ये 6 मार्क ये भी आ सकता है दैट व्हाई सिकंदर मिर्जा इंट्रोड्यूस 1 यूनिट स्कीम, राइट? इसको भी एक दफा देख लेते हैं। तैयबा आर यू देयर बेटे? कैन यू प्लीज रीड इट? तैयबा इज नॉट हियर आई गेस। ओके, मैम तैयबा के नेट चला गया तो शी इज नॉट एबल टू जॉइन। चलो कोई बात नहीं। राजा आप पढ़ लो बेटा। कैन यू प्लीज रीड इट? व्हाई सिकंदर मिर्जा इंट्रोड्यूस 1 यूनिट स्कीम? Iskandar Mirza introduced 1 unit scheme to establish a party between East and West Pakistan. East Pakistan has a large population, around 56%, and demanded greater. The western main, made up of several smaller provinces, feared being dominated. To West Pakistan provincialism. In West Pakistan, provinces like Punjab, Sindh, and NWFP had strong ethnic and linguistic identities. The central government saw provincialism as a threat to national unity. By merging them, the idea was to suppress ethnic division and promote a stronger unified Pakistani identity. Yes. To strengthen the central control, Iskandar Mirza and the central bureaucracy wanted greater control over bureaucracy. Bureaucracy wanted greater control over the vast and diverse western region. By removing provincial government, they could centralize authority in Karachi, then capital. This move also empowered the civil military elites, especially from Punjab. Okay, Why is it were clear there बेटे? so wait. Have you understood बेटे कि 1 यूनिट पॉलिसी सिकंदर मिर्जा ने क्यों इंट्रोड्यूस की थी? क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बराबर करना चाहते थे ताकि ईस्ट पाकिस्तान नेशनल असेंबली में डोमिनेट ना कर सके। वो वेस्ट पाकिस्तान में नेशनल सॉलिडेरिटी और प्रोविंशियलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे और प्रोविंशियलिज्म को, रेसिज्म को कम करना चाहते थे। वो अपने सेंटर की कंट्रोल को बढ़ाना चाहते थे और ये चाहते थे कि सेंटर का जो कंट्रोल है वो वेस्ट पाकिस्तान के पास है। इसीलिए बेटा सिकंदर मिर्जा ने 1 यूनिट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। अब एक और सवाल आता है बेटे कि सिकंदर मिर्जा ने रिजाइन क्यों किया? बेटे सिकंदर मिर्जा की रिजाइन करने की बहुत सी वजूहात थी, लेकिन आप ये भी याद रखो कि सिकंदर मिर्जा ने ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई बल्कि जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराने वाले भी सिकंदर मिर्जा थे। टेलीफोन लाइन को स्प्रेड करने वाले भी सिकंदर मिर्जा थे, राइट? लेकिन सिकंदर मिर्जा के दौर में उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज किया। पहले चौधरी मोहम्मद अली ने खुद रिजाइन किया था, फिर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से हुसैन शहीद सोवर्दी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, ये सोच करके उनको सपोर्ट मिल जाएगी ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन हुसैन शहीद सोवर्दी के बाद फिर उन्होंने इस्माइल चंडीगढ़ को अपॉइंट किया, फिर फिरोज खान को अपॉइंट किया। बार बार प्राइम मिनिस्टर चेंज करने की वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ गई थी। स्टेबिलिटी को रिस्टोर करना नामुमकिन हो गया था, राइट? साथ ही साथ बेटे जो सिकंदर मिर्जा थे उन्होंने इलेक्शंस का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही थी, कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं थी, राइट? हुसैन शहीद जो आपके पास हुसैन सोवर्दी थे, उन्होंने थ्रेट किया था सिकंदर मिर्जा को कि मैं पंजाब की गवर्नमेंट को मिलाकर सिकंदर मिर्जा की गवर्नमेंट को खत्म कर दूंगा। तो इन हालात में सिकंदर मिर्जा ने रिजाइन किया। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सिकंदर मिर्जा ने रिजाइन क्यों किया, या ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि मार्शल लॉ 1958 में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, यानी अयूब खान पावर में क्यों आए। इन 2 ways the question can be asked from you. Is it clear? तो ये 3 रीजंस आपने याद रखना, ओके? चलो अब इन 3 रीजंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम अयूब खान की पॉलिसीज को गो थ्रू करेंगे। यस साकिब, कैन यू प्लीज रीड these 3 points with? Number 1, there was a number of prime ministers between 1956 and 58, and it reached a stage when General Ayub Khan felt that the army should take control to restore stability.
Number two, East Pakistan's politicians wanted more say in the running of the central government, which increased tension. Iskandar Mirza had lost the support of many of the leading politicians and was alarmed at a plan by Suharwardi to unite the political leadership of Bengal and Punjab against him. Therefore, he turned to Ayub Khan and military for help. He did not fulfill the promise of holding elections, and there was economic crisis. अब बेटे हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अयूब खान की पॉलिसीज की। अयूब खान वाज अ पर्सन बेटे व्हेन ही केम इन पावर, तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस की बेसिक डेमोक्रेसी, राइट। बेसिक डेमोक्रेसी बेसिकली वाज अ 4 टायर सिस्टम, जिसके अंदर बेटे जो आम इंडिविजुअल था जी। मैम मुझे ऊपर क्वेश्चन था कि क्या नाम है 51 से 58 इतने गवर्नमेंट्स क्यों, तो उसका आंसर क्या है? मेरा बेटा ये देखो सवाल ऐसे आ सकता है पर्सनालिटीज को कंबाइन करके। सिंपल, which of the following contributed the most to Pakistan domestic policies between नहीं ये 1940 नहीं मैम, ये नहीं ऊपर ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट वाला, हाँ ये रह गया था। अच्छा बेटे सवाल ये भी आता है 6 मार्क का कि 1951 से लेकर 1958 के दौरान आपने देखा बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, तो ऐसा क्यों था? उसका पहला रीजन ये था कि हमारे जो सिंसियर पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको हमने अर्ली ईयर में ही खो दिया था। कायदे आजम 1948 में मर गए, लियाकत अली खान 1951 में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो बाद में लीडर्स आए या बाद में जो पॉलिटिशियंस आए वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको कंट्री को उस लिहाज से चलाना नहीं आता था जो लियाकत अली खान और कायदे आजम का विजन था। दूसरा रीजन ये था बेटे कि कश्मीर वाज अ मेजर सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी यहाँ पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता, वहां इंडिया कश्मीर के हवाले से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, राइट। यानी कश्मीर में अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा दिया, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली बेटे इसी वजह से पाकिस्तान कभी भी 51 से 58 के दौरान इतनी गवर्नमेंट चेंज हुई। फिर तीसरा रीजन ये था बेटा कि पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे जो एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर थे, उनके दरमियान इतने ज्यादा डिफरेंसेस थे, ठीक है। फिर हमारे पॉलिटिकल फिगर्स को इतना ज्यादा कत्ल किया गया, हमारे पॉलिटिशियन इनएक्सपीरियंस थे। जब भी 1951 से लेकर 1958 तक इतनी ज्यादा गवर्नमेंट चेंज हुई। यस बेटे सादिक, कैन यू प्लीज रीड दीस पॉइंट्स? Number one, Jinnah died in 1948 and Liaquat Ali Khan was assassinated in 1951. The country was struggling to establish itself without 2 experienced figures. The problem of running a new country were very difficult to overcome, and India had not been forthcoming in sharing out the joint assets. Number two, the problems associated with managing the Kashmir issue and relations with India over it were very difficult with no agreement on its future. Number three, the formation of East Pakistan brought with it its problem relating to the capital being located in West Pakistan and refusal to have Bengali as the main language was a source of discontent and conflict, together with plethora of assassinations of leading figures. Inexperienced politicians were having a great difficulty running the country, and as a result, there was lack of stability in governing, and this led to many different governments being formed during these years. समझ आया बेटी एवरीबॉडी? ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास इस वाले पार्ट से, ठीक है जी। अब हम बात करें बेटे अयूब खान की पॉलिसीज की, क्योंकि ओवरऑल सारी पॉलिसीज को मिलाकर पास पेपर में भी एक 16 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। तो अयूब खान की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम बेसिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इट वाज अ 4 टायर सिस्टम, जहां पे बेसिक डेमोक्रेट डिविजनल काउंसिल के लिए या कोऑर्डिनेशन कमेटीज के लिए वोट करते थे, फिर वो ऊपर वाले लोगों के लिए वोट करते थे, एंड देन प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया जाता था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरह बेसिक डेमोक्रेसी के अंदर तमाम लोगों के वोट की अहमियत बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, राइट। इसकी सक्सेस और इसके फेलियर को भी देखेंगे। सक्सेस ये थी कि मार्शल लॉ हट गया था, राइट, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी, प्रेसिडेंट बन गए थे, राइट, प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर्स थी, राइट, लोग बेसिक डेमोक्रेट्स के जाके अपनी पावर को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते थे। इसका फेलियर ये था कि बेटे प्रेसिडेंट के हाथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, यानी एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। प्राइम मिनिस्टर को चूज करेगा तो प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली को चूज करेगा तो प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स को कॉल करेगा तो प्रेसिडेंट। क्योंकि बेटे जब अयूब खान पावर में आए थे ना, उन्होंने सबसे पहले
अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दी थी। उन्होंने 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था, यानी खत्म किया था, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी को लेकर आए थे, एक नई चीज को लेकर आए थे। एक बेसिक डेमोक्रेसी में 4 टायर सिस्टम था, जहां पे एक आम शख्स को डायरेक्टली हेड के लिए वोट करने की इजाजत नहीं थी। समझ आ रही है बात? तो इसका फेलियर ये था कि जो ज्यादातर बेसिक डेमोक्रेट्स थे, इनको एमएनएस जो है वो ब्राइब कर सकते थे, उनको पैसे खिला सकते थे, राइट? और प्रेसिडेंट के हाथ में ही सारी पावर थी। देखो, ये बेसिक डेमोक्रेसी अयूब खान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग याद रखो। देखो, आम तरीके से जो हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं बेटे, वो होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत, लेकिन अयूब खान ने जो इलेक्शंस रखे वो बेसिक डेमोक्रेसी की बेस पे रखे। समझ आ रही है बात? तो चले पहले बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका एक एक करके सारे रिफॉर्म्स को गो थ्रू करेंगे। बट रिमेंबर, whenever you're discussing the policy, you need to evaluate the success and the failure. Is it clear? Please read. Who is going to read? Who is FS? FS कौन है भाई? फातिमा सिद्दीकी। फातिमा, okay. फातिमा मेरा बच्चा, can you please read it? कौन सा मैम? First point बेटे, basic democracy, constitutional reforms. Constitutional reforms. He believed in controlled democracy. He thought people were not enough mature to elect people, so he introduced basic democracy. It was an indirect form of elections. 40,000 basic democrats were elected from each East and West Pakistan by common people. These basic democrats had to elect members of National Assembly and president. There was a step introduced between common people and MNAs. This was a 4-tier structure. Ayub Khan thought that in this way, BD members could easily convey the demands and problems of people to the MNAs as they are having smaller constituencies. Okay, success. Elections were held and martial law was lifted. President had powers to execute policies from efficiency. People could have direct access to basic democrats. Failure. A very powerful president could misuse powers, being lesser in number as electoral college for MNAs. Basic democrats could easily be bribed or pressurized by MNAs. A decade of development. Right? So basically, बेटे, this was basic democracy. देखो, बेसिक डेमोक्रेसी की छोटी सी एग्जांपल मैं और देती हूँ, जिसको ना समझ आए अब समझ आ जाएगा। बेटे, फॉर एग्जांपल मैं आपके स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय के इलेक्शंस रखती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो ग्रेड 6 का बच्चा है वो 7 के लिए वोट करेगा, 7 का बच्चा 8 के लिए वोट करेगा, 8 का बच्चा IG 1 के लिए वोट करेगा, और फाइनली IG 2 के स्टूडेंट्स हेड गर्ल और हेड बॉय को वोट करेंगे। यानी मैंने एक ग्रेड 6 वाले बच्चे को सेम वो राइट्स नहीं दिए जो मैंने IG 2 वाले बच्चे को दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर लर्नर्स? अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, मैम बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस उसने क्यों की, उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि बेटे इसका आंसर सिंपल ये है, ही वांटेड टू रिमेन इन पावर। वो पावर में रहना चाहता था, वो चाहता था कि हर लिहाज से मैं ही जीतूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आते हैं बेटे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ। ऑलवेज रिमेंबर बेटे, इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं और हम इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। When we talk about agriculture reforms, my dear learners, agriculture reforms of Ayub Khan were very, very good. क्योंकि बेटे वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टाइम कहलाता है। उसकी अपनी कैबिनेट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हु एडवाइजेस द हेड, उसके लोगों ने उसको एडवाइस किया कि आप सबसे पहले एक सर्टेन लैंड का स्टैंडर्ड सेट करें, यानी उसने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। उसने मेक श्योर किया कि ओवरऑल लैंड 12.5 एकड़ से कम ना हो, 500 फॉर इरिगेटेड, राइट, 1000 फॉर अनइरिगेटेड। उसने फार्मर्स को लोन्स दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए, हाई यील्डिंग सीड्स दी, डैम्स एंड बैराजेस बनाए ताकि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम स्टैब्लिश हो सके। और उसने मेकनाइजेशन को प्रमोट किया कि फार्मर्स जो हैं वो मशीनरी का इस्तेमाल करें। नो डाउट अबाउट इट कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गई, हमें बहुत फायदा हुआ, हमारी खाने की कमी बहुत रिड्यूस हो गई।
बट अनफॉर्चुनेटली बेटे इसका फेलियर ये था कि इसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म से बड़े बड़े जागीरदारों को फायदा था, वडेरों को फायदा था. Like for example, I can say that big landowners were, getting a lot of profit, but not the farmers, right? क्योंकि जो farmers थे उनको लगता था that basically if they had to merge their land. For example, if I am a poor farmer and I have a land less than 500, then definitely I have to merge my land with somebody else in order to cultivate my land, because otherwise government is not going to allow me. These are known as agriculture reforms. Got it? Yes, Aisha, can you please read economic reforms? These were the most important reforms introduced during this time. They were comprised of agriculture and industrial reforms. Agriculture reforms due to Indus Water Treaty, barrages, and vast network of canals were built. Tube wells, tractors, HYV seeds, chemical fertilizers were introduced. Land reforms were introduced to break the hold of big landlords. More than 500 acres of land cannot be retained by any landlord. Excessive land must be sold to the landless tenants. Similarly, ceiling for smaller farms were also fixed at 12.5 acres. He believed that smaller farms will be more productive than larger farms. Success crop production increased manifold. There was increase in cultivated area. Food deficiency was overcome. Failures, most of the profit was earned by large landowners as he could afford to buy modern machinery and other equipment. Industrial reforms, loans were taken from West countries to support industries, and an oil refinery was established in Karachi. Mineral Development Corporation set up for the exploration of minerals. In 1964, an economic union was formed. Iran and Turkey, known as RCD, an export bonus scheme was set up, offering incentives to industrialists who increased export success. Economic growth rose sharply by 7%, which was highest in Asia and three times that of India. Production also rose rapidly. In 1968, it was revealed that only 22 families owned 66 of all industrial assets and 80% of all banking and insurance in Pakistan. This centralization of wealth showed inequality in economy. East Pakistan was totally deprived of this share. Also, Pakistan was heavily dependent on foreign aid. अच्छा जी, खेती इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में आपको चार चीजें याद रखनी है. मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरसीडी, राइट. इसके अलावा आपको याद रखना है बोनस स्कीम्स. इसके अलावा आपको याद रखना है ऑयल रिफाइनरी. लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की तरह बेटे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से भी जो सिर्फ 22 फैमिलीज थी पाकिस्तान की उनको फायदा था, जो वेस्ट पाकिस्तान में थी. ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं हो रही थी, उनकी वेजेस बेहतर नहीं हो रही थी, लेकिन फायदा बड़े बड़े लोगों को था. देखो, पॉलिसी उस वक्त प्रोडक्टिव समझी जाती है या हम उसको सक्सेसफुल कह सकते हैं जिसमें गरीबों को भी फायदा हो, अमीरों को भी फायदा हो, जो पैसा लगा रहे हैं उसको भी फायदा हो, जो काम कर रहे हैं उसको भी फायदा हो. ये तरक्की कोई तरक्की नहीं होती कि बेचारा गरीब जो है वो पिस रहा है और अमीर 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 हो रहा है. Got it? इसके अलावा बेटे उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज भी बहुत सारी हैं. यानी उन्हें स्कूल्स बनाए, टेक्स्ट बुक्स पब्लिश की, उन्होंने हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस की रेफ्यूजीज के लिए, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई, जनरल आजम खान को अपॉइंट किया, एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर अकोमोडेटिंग मेनी रेफ्यूजी. पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से उन्होंने बहुत सारे काम किए. रेडियो, सिनेमाज, न्यूज़पेपर्स में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया. वुमेन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की. राइट? यस शाफे, आप कुछ पूछ रहे हो बेटे? मैम बोनस स्कीम समझा सकते हो क्या? बोनस स्कीम्स ये थी शाफे, लाइक फॉर एग्जांपल देखो आप, मेरे पास बहुत पैसे हैं, राइट? तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, मुझको ना किसी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करेगी कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगा लूं, यानी मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं. तो जिन जिन लोगों के पास पैसा था वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहते थे कि वो लोग पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में उस पैसे को लगाएं. तो उन्होंने बोझल स्कीम उस हवाले से इंट्रोड्यूस की. इज इट क्लियर? डन. अब बेटे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो नाइजल स्मिथ में है. आई रिक्वेस्ट यू कि आप नाइजल स्मिथ से गो थ्रू करना. लाइक होर्डिंग का पॉइंट है,
लाइक अयूब खान के दौर में जो बेसिक खाने पीने की चीजें थी वो सस्ती थी, क्योंकि अयूब खान ने एक चेक एंड बैलेंस रखा था, सुपरविजन रखा था। होर्डिंग की इजाजत नहीं थी, HOARDING। होर्डिंग मीन जखीरा अंदोजी। जैसे मैं एक शुगर मिल ओनर हूँ, अगर मैं शुगर को अपने पास जमा कर लूं और मार्केट में ना आने दूं और 3 महीने बाद मार्केट में निकालूं, तो जो शुगर का पैकेट मेरा 50 रुपीज का बिकता था, अब वो 500 का सेल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटे उसने होर्डिंग पे बड़ी सख्ती रखी कि जो बेसिक खाने पीने की चीजें हैं, गोश्त, दूध, दही, सब्जी, वो लोगों को चीपर रेट्स में मिले। आज के दौर की तरह नहीं कि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है। समझ आ रही है बात? साथ ही साथ उसने मेक श्योर किया बेटे कि जो औरतों के राइट्स है उनको फुलफिल किया जाए। 16 ईयर्स लड़की की एज डिसाइड हुई, 18 ईयर्स बॉय लड़के की एज डिसाइड हुई। उसने मेक श्योर किया कि जो भी शादियां हो रही हैं या जो भी डिवोर्सेस हो रही हैं वो गवर्नमेंट से अटेस्टेड हो, राइट? सो बेसिकली ये तमाम चीजें थी जो उसने फैमिली लॉज के हवाले से उस पर काम किया। तो ये वो सारी पॉलिसीज हैं जो अयूब खान की आपने गो थ्रू करनी है। अब अयूब खान के दौर में बेटे कुछ इवेंट्स हुए, जैसे 1965 वॉर हुई जिसको हम डिफेंस वॉर कहते हैं, फिर ताशकंद डिक्लेरेशन हुई, एक अगरथाला कॉन्स्पिरेसी केस है, राइट? अयूब खान को आर्किटेक्ट कहा जाता है गुड रिलेशन का। उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत प्रोडक्टिव थी, राइट? उसने इंडस बेसिन ट्रीटी साइन कराई, RCD हाईवे उसके जमाने में बना। तो ये भी सारे उसके सक्सेसफुल पॉइंट्स हैं, राइट? अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में उसने शेख मुजीबुर रहमान को फिगर आउट कर लिया था कि वो इंडिया से मदद ले रहा है, तो उसने उसको जेल के मतलब ही वाज अरेस्टेड बाय अयूब खान, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स को आपने एक दफा गो थ्रू करना है, ये मेन इवेंट्स को गो थ्रू करना है, राइट? अब अयूब खान से रिलेटेड बेटे एक और क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ही चेंज कैपिटल। 1967 में इस्लामाबाद वाज मेड द न्यू कैपिटल। आपको पता है कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम अपनी जिंदगी में इस्लामाबाद कराची को अपना कैपिटल बना कर गए थे, बट अयूब खान चेंज द कैपिटल ड्यू टू सेवरल रीजन। पहला रीजन उसने ये दिया कि कराची की इंडस्ट्रियल सिटी है, इसको मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल है। कराची समंदर के करीब है तो इट इज मोर वनरेबल टू द अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड। कराची जो एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, कराची में पोल्यूशन भी ज्यादा हो गई इंडस्ट्रीज की वजह से, उसको मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। कराची का मौसम भी सूटेबल नहीं है, बट इन रियलिटी वो आर्मी हेडक्वार्टर्स के करीब रहना चाहता था। दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड इस्लामाबाद एज द न्यू कैपिटल एंड इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल इन 1967। और इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन के लिए एक अर्बन डेवलपर को, ग्रीक अर्बन डेवलपर को बुलाया गया और एक मॉडर्न लाइन पे इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्ट किया गया। कैपिटल सिटी बेटी वो सिटी होती है जहां पे आपकी तमाम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती है, नेशनल असेंबली है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं या बिल्डिंग्स होती हैं वो वहां पर होती है। So बेटे दिस इज ऑल अबाउट अयूब खान। प्लीज गो थ्रू इट, डोंट गेट पैनिक। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, अपनी तैयारी अप टू द मार्क रखें और पैनिक नहीं हो प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पैनिक मत हो, अपने आप पे भरोसा करें, अपने अल्लाह पे भरोसा करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो आप लोग जरूर कामयाब हो। ऑलराइट, सो आई एम एंडिंग आवर टुडेज क्लास। मैम ताला हम कल मिलेंगे, राइट? जी बेटे। मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, आप मुझे सेक्शन सी का सॉल्व करके आप चेक करके बता सकते हैं अच्छा, सही है या मैंने गलत। आपके क्वेश्चंस अब तक खोले नहीं है, मैं अभी क्वेश्चंस आप लोगों को काफी बच्चों ने भेजे हुए, आई एम गोइंग टू चेक एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द फीडबैक, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका रह गया है तो ओके प्लीज आप मैम। रिमाइंडर मैसेज दो कि मैम मैंने भेजा हुआ है, आप प्लीज मुझे हमारा चेक कर दें, सही है? क्योंकि एक साथ बहुत सारी चेकिंग आई हुई है, तो डू प्लीज डू जस्ट गिव मी सेंड मी अ नोटिफिकेशन, ठीक है? मैं ये आपका आज का लेसन भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाके देख लेना अगर आपको रिविजन करनी हो या गो थ्रू करना हो, ठीक है? इस वक्त तुम लोग पता है स्मार्ट लर्निंग करो। ये नोट्स क्यों बना के दिए? ताकि कम टाइम में ज्यादा कोर्स कवर कर लो। देखो अभी मैंने आई गेस 1 घंटे की क्लास ली है, 1 डेढ़ घंटे की क्लास ली है और हमारा पूरा चैप्टर डन, ऐसा ही है ना? तो बेटा इस वक्त आपने स्मार्ट लर्निंग करनी है, टाइम वेस्ट करके नहीं पढ़ना, स्मार्ट लर्निंग करो, नोट्स को गो थ्रू करो। गॉट इट? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?
May I end the class now? I'm ending the class, beta. Take care. Bye bye.